Okay, so this is anesthesia paper number 1, SK20. सो लिग्नोकेन ओवरडोज के बारे में कौन सा अमंग्स द फॉलोइंग ठीक है? आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। लिग्नोकेन के बारे में, इट कॉजेज पेरी ओरल पेरेस्थीजिया, convulsions that last for several hours. EEG at 1.0 Mach of isoflurane. EEG at 1.0 Mach of isoflurane is equal to 0.5. 40-year-old patient presents with long history of postprandial right upper quadrant pain. He now has fever, raised TLC, gallbladder thickening है, multiple gallstones हैं और pericholecystic fluid on ultrasound. ये इसका एक कीवर्ड या डायग्नोस्टिक पॉइंट है। तो this indicates acute cholecystitis. A patient undergoes neuromuscular monitoring using the train of 4 method. Based on the number of 4 twitches observed, what is the estimated percentage of neuromuscular blockage? तो 4 twitches में 70% blockage आपको मिलती है। ट्रेन ऑफ 4 में आप 4 इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई जो है लगाते हो पेशेंट को एंड इट इज़ डिलीवर्ड ओवर 2 सेकेंड्स। अगर आपके साथ इसमें 4 twitches होंगे, द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मसल twitches आर यूज टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। तो 4 twitches में 70% ब्लॉकेज होगी, 3 twitches में 75 to 80, 2 twitches में 80 to 90, 1 में 90 to 95 और 0 twitches में आपको 100% ब्लॉकेज मिलेगी। 45-year-old office worker presents with numbness, tingling and pain in the first 3 fingers on her right hand, which worsens at night. She also reports weakness in her grip and frequently dropping of object on examination. There is thenar muscle atrophy. Which of the following test is most commonly used to diagnose? तो ये सारा कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ जा रहा है जिसमें हम फैलेंस टेस्ट करते हैं। 30-year-old patient is brought to emergency department after RTA. He complains of difficulty in breathing and decreased chest movement. On the affected side, chest X-ray reveals a radiolucent ब्लैक शैडो की बात आ जाए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो ब्लैक शैडो में मैंने आपको कहा था कि निमोथोरैक्स आपने सस्पेक्ट करना है। पर्सन हैज़ बीन सिटिंग विद वन लेग क्रॉस्ड ओवर अदर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. अपॉन स्टैंडिंग ही एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन walking, particularly with foot dorsiflexion and inversion. What is the most likely cause? तो इसका most likely cause among the following क्या होगा? That is your option number B. Of A fibers are more sensitive to pressure than C fibers. अच्छा, patient presents with lower back pain and loss of lumbar lordosis. What is the initial treatment? तो initial treatment में आपने patient को क्या देना है? लोअर बैक पेन और लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस में NSAIDs और फिजियोथेरेपी एडवाइस करनी है। वॉमिटिंग सेंटर आपके साथ कहाँ पे होता है? तो VCRS, VCR, वी फॉर वॉमिटिंग कफ, ठीक है, और आर से जो है रिस्पायरेटरी सेंटर, ये सारे आपके साथ मेडुला में होते हैं, ठीक है। और या इन्होंने जो है मिड ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस लिखा है, तो ये भी ठीक आ सकता है। ग्लूटाल्डिहाइड इज कॉमनली used as a high level disinfectant in medical setting. At what concentration does it exhibit bactericidal activity? तो ग्लूटाल्डिहाइड 1% 2% पे अपनी बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी दिखाता है। Abnormal opening of the penile urethra on the dorsal surface of the penis due to faulty positioning of the genital tubercle, इसको हम क्या कहते हैं? ये अगर ओपनिंग ऑन द डॉर्सल सरफेस पे होगा जिसको एपिस्पीडियसिस कहेंगे, अगर वेंट्रल सरफेस पे होगा उसको हम हाइपोस्पीडियस कहते हैं। A patient is in a state of shock. Which volatile anesthetic agent should be avoided? तो शॉक में है, कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट आपने अवॉइड करना है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, हेलोथेन। Which chemotherapeutic agent is used in an intrapleural injection for treating pleural plaque? तो pleural plaque की ट्रीटमेंट में हम सिस्प्लेटिन यूज़ करते हैं। Patient was brought to OT for operation for acute intestinal obstruction.
Anesthetist is considering IVH2 blocker. What might be the reason? तो एनेस्थीसिस्ट IVH2 ब्लॉकर क्यों यूज़ करना चाहता है? बिकॉज इंक्रीज pH ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पेशेंट ओटी में आया, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको एनेस्थीसिस्ट जो है ही वांट्स टू कंसिडर H2 ब्लॉकर। ये H2 ब्लॉकर आपके साथ इंक्रीज करता है pH ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट। अच्छा, व्हाट माइट बी कॉज ऑफ विसरल पेन इन द एब्डोमेन? विसरल पेन इन द एब्डोमेन का कॉज क्या होगा कि देयर विल बी इंक्रीज्ड डिस्टेंशन ऑफ विसरा एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरा। फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद एनाल्जेसिया एंड थर्मोस्थेनिया ऑफ राइट साइड ऑफ फेस एंड वीकनेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। वेयर इज़ द डिजीज़? तो डिजीज़ है वेलनबर्ग सिंड्रोम ऑफ द लेफ्ट साइड। कैल्शियम इज़ रिलीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली? तो कौन सा ऑर्गेनल कैल्शियम रिलीज करता है? दैट इज़ योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट डायग्नोज मेड, व्हाट विल बी सीन? तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में आपको पल्मोनरी इन्फंडिबुलम स्टेनोसिस मिलती है। 16-year-old girl presents with self-mutilation, involuntary movement, speech problem, painful joints, urine shows excessive uric acid। तो ये लीशनिहान है, HGPRT की डिफिशेंसी होगी। 6-year-old boy presents with self-mutilation, involuntary movement, speech problem, painful joints। तो ये वही सेम सिनेरियो है, लीशनिहान। A gardener presents with pinpoint pupil diaphoresis, urinary incontinence. What is the most immediate treatment? तो immediate treatment में आपने atropine देना है। Pralidoxime is not an option. Atropine should be given. अगर pralidoxime ना हो तो आप atropine दे सकते हो। Lady presents with pain on dorsum of her wrist that radiates to her index finger for the past 3 months. Her symptoms are suggestive of single nerve injury. Which nerve is most likely affected? तो कौन सा नर्व इसमें आपके साथ अफेक्ट होगा? ये आपके साथ, दैट इज़ रेडियल नर्व। ऑप्शन नंबर सी, रेडियल नर्व। A patient presents with seizure, tongue movement, smacking of lips, headache and muscle movement. His grandfather also had the same disease. तो ये लीजन आपके साथ किधर है? दिस इज़ इन द कॉर्डेट, ऑप्शन ए। What forms the roof of anterior part of lateral ventricle? तो anterior part of lateral ventricle का roof जो है, that is formed by the body of the corpus callosum. Patient presents with diarrhea caused by Campylobacter jejuni. Which antibiotic is? अच्छा, पिछले पेपर में इसका आंसर उन्होंने जीनू ऑफ कॉर्पस केलोसम दिया था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है दैट इज़ बॉडी ऑफ द कॉर्पस केलोसम, लेकिन इसको आप कंफर्म कर लें। Patient presents with diarrhea caused by Campylobacter jejuni. Which antibiotic is most appropriate treatment for the infection? The most appropriate treatment for infection is azithromycin. Young person from northern region presents with lethargy, dizziness, cold intolerance. What is the most likely underlying cause? तो इसमें कौन सा underlying cause होगा? नॉर्दर्न एरिया से है, लेथार्जी, लेजीनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस है। ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू डाइट्री आयोडीन डिफिशेंसी। एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़, आपको मैंने कहा है कि टीपीओ की बात आ जाए तो दैट इज़ हैशिमोटोज़। हैशिमोटोज़ को माइंड में लाना है। A boy faints during football practice after drinking large amount of water. Which physiological change likely led to his collapse? फेंट हो गया ड्यूरिंग फुटबॉल प्रैक्टिस जब उसने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पिया, तो ये क्यों कोलैप्स हुआ? दिस इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोनिसिटी। विच हार्मोन प्राइमरली इंड्यूस हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस ड्यूरिंग स्ट्रेस? तो आपके साथ इंड्यूस करता है हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, दैट इज़ योर एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन। व्हाट इज़ द प्राइमरी अफेक्ट ऑफ डिजिटैलिस ऑन द हार्ट? तो डिजिटैलिस ऑन हार्ट का अफेक्ट है कि दिस इज़ आयोनोट्रोपिक। द वॉमिटिंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? तो ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरस के साथ होता है, उसमें लोकेटेड होता है। व्हाट इज़ द मेन कंसर्न एसोसिएटेड विद N2O as an anesthesiast?
तो main concern associated with N2O as anesthesiast is that there is diffusion into air fluid spaces. हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस वजह से कॉज होता है? एसिटाजोलामाइड की वजह से. A hypertensive patient on hydrochlorothiazide for many years. His BP is well managed but his serum sodium 119, osmolarity 249. Clinically he is hypovolemic. What is the best initial step? तो इसमें best initial step आपने क्या करना है? 0.9% NaCl with furosemide. अच्छा, फिर है हर्षप्रंग डिजीज प्राइमरीली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. तो हर्षप्रंग में आपके साथ सिग्मोइड कोलोन इफेक्ट होता है. प्रेजेंस ऑफ एसिडिक काइम इन द ड्यूडेनम स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो एसिडिक काइम की वजह से आपके साथ ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटिन रिलीज होता है. विच ड्रग इनहिबिट टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज सिंथेसिस. तो ये आपके साथ है मेथोट्रेक्सेट. पेशेंट विद ग्लूकोमा विच ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. तो ग्लूकोमा में आपने एट्रोपिन नहीं देना. हाइपरटेंसिव पेशेंट अंडरगोइंग लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी. ड्यूरिंग द प्रोसीजर अ टेस्ट इज डन फॉर एंटीबायोटिक an antibiotic is administered and pneumoperitoneum is created by inflating air into the abdomen. Shortly after, the patient develop a sudden drop in the blood pressure and rapid increase in the pulse rate. What is the most likely cause? तो इसका most likely cause आपके साथ क्या है? That is your anaphylactic reaction, option A. Humidity of the air in alveoli depends upon. तो humidity of the air in alveoli core body temperature पे depend करता है. Man lifted heavy weight few days ago. On examination there is loss of lordosis of spine and pain below the spine. तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा? दैट विल बी योर लंबर डिस्क हर्निएशन. फिर है पेशेंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया हैविंग सीजर्स एंड एरिथमिया. फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इसका क्या होगा? दैट विल बी प्रोपाफोल. measuring BP from dorsalis pedis in standing position, what will be the observation? The observation will be that there will be higher than radial. Cytotoxic drug paclitaxel is classified as which of the following? इसको हम microtubule inhibitor कहते हैं. Flow through orifice depends upon. तो flow through orifice आपके साथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? It depends upon density. Flow through medium की बात आ जाए तो viscosity उसमें लिखना है. What is the name of nucleus responsible for detecting phone vibration in the pocket? तो phone vibration को nucleus dorsalis detect करता है. If significant GIT bleeding has occurred during surgery, which inhalational anesthesia should be given that has a high blood gas coefficient? तो high blood gas coefficient किसका है? That is halothane, option B. True regarding vapor pressure. तो vapor pressure के बारे में amongst the following कौन सा ठीक है? That it is proportional to the temperature of the liquid itself. True regarding resistance through a tube during suction. तो resistance through tube during suction के बारे में क्या चीज़ ठीक है? यहाँ पे pause करके you can think over this. तो the correct answer is 90%, 90-degree right angle increases resistance significantly. Option A. फिर है patient presents with complaint of pain on examination, dilated tortuous blue veins are observed. The patient is already taking NSAIDs. What should be given next? तो already NSAIDs देना है, उसके बाद आपने उसको क्या कहना है? You have to advise lifestyle modification. The following is related to movement of molecules across capillary membrane. तो movement of molecules across the capillary membrane is your Fick's law. ओरल थ्रश का ट्रीटमेंट क्या है? उसमें हमने निस्टैटिन देना होता है, एंटी फंगल. अ पेशेंट विद एडिसन डिजीज इज़ एट रिस्क ऑफ विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन. तो एडिसन्स में देर इज़ अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग hyperkalemic paralysis, option A. A patient sustained a splinter injury from a blast resulting in damage to pericardium. During surgery, the pericardium was found to be damaged in the inferior side. The surgeon inserted the finger into the pericardium to locate piece of sharp nail. तो ये repeated है, कर्लीसैक वाला MCQ है. इसमें हमने पढ़ा था कि oblique sinus is the answer. ठीक है, ऑप्शन सी oblique sinus. ये कर्लीसैक वाला MCQ है, बार बार रिपीटेड है, बड़ा MCQ है.
इसलिए इसको हमने आगे लेक्चर्स में ऑलरेडी 2-3 दफ़ा कवर किया है। 18-year-old girl, young lady died suddenly. There is no only short history of fever and headache on autopsy. Heart is enlarged, weight 102, small lymphocytes in the myometrium. तो ये आपको कोक्सैकी बी वायरस में मिलेंगे। Which of the following organism contain DNA or RNA but never both, so that are your viruses? A hospitalized patient developed redness and swelling around the IV line. The organism isolated was catalase positive, coagulase negative. तो catalase positive है, coagulase negative है, that is your polysaccharide. A patient visited the clinic and is otherwise healthy. His father died at 60, his uncle at 49 from cardiovascular disease. Labs में LDL 148, HDL is 35 along with lifestyle modification and statin therapy. What else should be assessed for health promotion? तो health promotion के लिए आपने कौन से lipids देने हैं, देखने हैं, VLDL देखना है. Patient has UTI and thickened mucosa of the urinary bladder. What is the primary protective mechanism of bladder against infection? तो primary protective mechanism में urothelial tight junction आता है. In DKA, from which of the following are ketone bodies synthesized? तो ketone bodies किससे बनते हैं? From lipids. Regarding von Willebrand, what is true? तो von Willebrand के बारे में amongst the following क्या true है? That it is synthesized in the endothelium. Patient presents with history of cough and wheezing. On examination, Th2 cells are involved in activation and survival of eosinophils. Which cytokine help in this? तो जब भी कफ wheezing की बात आ जाए, activation and survival of eosinophils में interleukin 5 आता है. Patient presents with difficulty in reading, diplopia, recurrent automobile accident. He also has headache relieved by painkiller. What is the most likely diagnosis? तो इसका most likely diagnosis is optic chiasma lesion. Duffy antibodies investigation में आपको क्या मिलेगा? polyethylene glycol. 5-HT3 antagonist given to a patient for diarrhea कौन सा है? That is your option number D, allosterone. Baby born on 1 minute was resuscitated and ETI was passed. What would be the Apgar score of the baby at birth? That is 0 to 2. Protein preventing RBC lysis and damage कौन सा है? That is pectrin. Patient has fever, sore throat, examination पर goiter भी है, T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है, TSH लो है और हार्ट रेट उसका जो है 100 है. दैट इज़ योर, आपने इसमें क्या देना है? यू हैव टू गिव ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेनोलोल. थायरोटॉक्सिक क्राइसिस की तरफ जाता है, फीवर वगैरह है तो इसमें यू हैव टू गिव प्रोपेनोलोल. पेशेंट हैज़ ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एडिसन्स. इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटेड MCQ है. दिस इज स्मिथ सिंड्रोम. ट्रीटमेंट ऑफ मरसा, मरसा में वेनकोमाइसिन हम देते हैं, वेनकोमाइसिन देते हैं. अगर वेनकोमाइसिन नहीं हो तो कोट्राइमोक्सिजोल, वो ना हो तो फ्यूसिडिक एसिड. हाइपोक्सिक सेल इंजरी फीचर क्या है? हाइपोक्सिक सेल इंजरी का फीचर है कि इसमें डिक्रीज ATP आपको मिलेगा. पेशेंट वॉज टेकिंग रेस्पेरिडोन, डेवलप ट्रिमर एंड रिजिडिटी. व्हाट इज़ द कॉज? तो ट्रिमर और रिजिडिटी क्यों कॉज हुई है? दैट इज़ ड्यू टू ऑप्शन नंबर बी, D2 एंटागोनिस्ट इन नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे. तो D2 एंटागोनिस्ट इन नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे. फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट इंडिकेशन फॉर प्लाज्मा थेरेपी क्या है? अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ प्लाज्मा थेरेपी इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, वारफरिन टॉक्सिसिटी. इन माइट्रल स्टेनोसिस व्हेन डज द ओपनिंग स्नैप ऑकर? तो ओपनिंग स्नैप आपके साथ कब होगा माइट्रल स्टेनोसिस में? व्हेन द आफ्टर S2. ओके, आफ्टर S2 आपने याद रखना है. अ पेशेंट हैज़ पेनसिस्टोलिक मर्मर, LVH, left ventricular hypertrophy, AFib. What is the most likely cause? पेनसिस्टोलिक मर्मर में MR आता है. ठीक है, MR, TR और VHD पेनसिस्टोलिक मर्मर कॉज करवाते हैं. A patient with AIDS presented with respiratory symptoms, drug given. What does the drug inhibit? तो ये ड्रग आपके साथ इनहिबिट करता है DNA सिंथेसिस को. Which vaccine is conjugated with protein?
तो दैट इज़ meningococcal, gonococcal, meningococcal are conjugated vaccine. Which vitamin other than folate is thought to be responsible for neural tube defects? That is your repeated MCQ है, ये vitamin A excess है. Old age patient presents with high trauma during operation, continuous bleeding, baseline coagulation profile, PTA, PTT raised, fibrinogen and platelet count low. On inquiry, history of bruises in 6 months, no other abnormalities. का cause क्या होगा? ये सारा सिनेरियो में DIC के बारे में बताया है, तो sepsis and DIC. फिर इसके बाद है patient with vague symptoms of Cushing syndrome. The doctor thought that the problem is at the level of receptor. तो कोर्टिसोल का रिसेप्टर कहाँ होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में कोर्टिसोल का रिसेप्टर आपके साथ होगा साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में थायराइड का रिसेप्टर होता है. फिर है 2-year old child with history of recurrent fracture without trauma, same history in other member of the family. What is the inheritance of the disease? तो 2 years है, this is autosomal recessive. 2-year old child with recurrent fractures. अच्छा, recurrent fractures है, ये osteogenic imperfecta की तरफ जा रहा है, that is autosomal dominant. I thought this was polycystic चाइल्ड वाला जो डिज़ीज़ है ना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किडनी के बारे में कुछ नहीं कहा. A young patient presents with sore throat, fever and goiter. On examination, his throat was congested, fever was 102, goiter was observed. लैब पे TSH डाउन, T3 T4 नॉर्मल. व्हाट विल यू प्रिस्क्राइब? TSH डाउन है, T3 T4, तो इसमें भी आपने प्रोपेनोलोल देना है. यंग पेशेंट हैज़ 5 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग एंड नो सिम्टम्स. इन्वेस्टिगेशन पे एयर फिस्चुला बिटवीन पैंक्रियास एंड GIT. ये फिस्चुला आपके साथ कहाँ पे लोकेटेड होगा? दिस फिस्चुला विल बी लोकेटेड इन द duodenum. Female was advised eye drops for eye infection. 2 days later complains of sore taste. The drops from eye first go into, ये drops पहले कहाँ जाएंगे? They will go to the nasopharynx. Increased viscosity of blood causes decrease in, तो जब viscosity of blood increase होगी, it will cause decrease in the capillary perfusion. A patient presents with bee sting. The doctor is looking for emergency kit with injectable epinephrine. What is the doctor trying to prevent? That is systemic anaphylaxis. A mother first baby without complication and does not receive ROGAM. After 18 months she delivered her second baby who developed hydrops fetalis. तो इसमें type 2 hypersensitivity आपको मिलती है reaction. 10-year-old girl has recurrent headache relieved by paracetamol. Imaging shows a tumor in the pineal gland. तो this is germinoma. Repeated MCQ है. Child with recurrent history of tonsillitis undergoes a tonsillectomy. During surgery, bleeding occur from the right tonsillar artery. तो right tonsillar artery किसका branch है? That is a branch of facial artery. इन दोनों में ही है facial artery. Patient after RTA comes to ER. There is no history of blood loss. On examination, blood pressure is 80/40. Pulse is 60. The patient has warm peripheries. What type of shock? तो इसमें neurogenic shock होगा. T cells are related to which of the following condition? तो T cells आपके साथ type 1 diabetes के साथ associated है. A patient with dysphagia undergoes endoscopy which reveals patches of discoloration but no ulcers. Barrett esophagus increase risk of which of the following condition? तो Barrett amongst the following किसका risk increase करते हैं? adenocarcinoma का. Patient taking ATT develop joint pain and uric acid level 12. तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू पायराजिनामाइड. विच टाइप ऑफ पॉलिप हैज़ द पोटेंशियल टू बी मैलिग्नेंट? तो एडिनोमेटस जो पॉलिप है वो आपके साथ मैलिग्नेंट हो सकता है. फिर इसके बाद है कम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर सेव इन रीनल इम्पेयरमेंट. जो रीनल इम्पेयरमेंट में सेव है दैट इज़ एट्राक्यूरियम. अ पेशेंट इज़ डायग्नोज्ड विद जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी एंड लार्ज बी सेल लिम्फोमा. तो इसमें आपने क्या करना है? सिर्फ कीमोथेरेपी करनी है. एडहेरेंस एंड कंप्लाइंस टू ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन, एडहेरेंस और कंप्लाइंस डिपेंड करते हैं अपॉन द पेशेंट परसेप्शन ऑफ डिजीज़. पेशेंट वॉज ब्रॉट टू द ER. ही हैड नो पल्स और ब्रीदिंग. CPR was started. He was intubated. No IV line maintained. Which of the following drug is ineffective through ETT? तो ineffective through ETT is your diazepam. नॉरएपिनेफ्रीन इसमें जो है
नॉर एपिनेफ्रीन अगर होता तो आपने वो सेलेक्ट करना, वो नहीं है तो फिर आप डाइज़ेपाम के पास जा सकते हैं। टेनिस प्लेयर प्रेजेंट्स विद वीकनेस इन थंब मूवमेंट, द पोस्टीरियर डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इज ट्रैप्ड बाय विच मसल, तो इसमें सुपिनेटर आता है आई गेस यस। 15-year-old patient presents with paler weakness and fever, लेबोरेटरी टेस्ट पे 15-17 ट्रांसलोकेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। तो ये कौन सा ट्रांसलोकेशन है? दिस इज़ AML। तो दिस इज़ ऑप्शन सी, ए एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, APL इसको कहते हैं, ठीक है। और दिस वाज अ केस ऑफ 15-17 आपको मिलता है इन AML। यंग बॉय प्रेजेंट्स विद DKA लाइक सिम्टम्स, लो इंसुलिन, तो कॉज क्या होगा? दैट विल बी कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। बीटा ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इन द स्प्लीन। Young boy with absent seizures was prescribed ethosuximide. What is the mechanism of action? तो ethosuximide आपके साथ enhance करता है, inhibit करता है T type calcium channel को, inhibits T type calcium channel. Young boy presents with history of repeated bouts of vomiting and now unable to pass urine. Laboratory investigation shows elevated burn. What is the most likely diagnosis? तो ये pre-renal azotemia है। मेलानिन डिपोजिशन आपके साथ क्रोकेनबर्ग स्पिंडल कॉज करवाते हैं। पेशेंट विद एंकल स्प्रेन ड्यू टू एक्सेसिव इन्वर्जन वाइल प्लेइंग, एक्सेसिव इन्वर्जन में आपके साथ एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट डैमेज होगा। अमाइनो एसिड दैट आर स्ट्रिक्टली कीटोजेनिक, तो वो आपके साथ लूसीन एंड लाइसिन है। हाउ डू एंटीजन मूव थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, तो ये भी रिपीटेड है एम सेल्स के थ्रू। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड अराइज फ्रॉम विच जर्म लेयर, तो ये आपके साथ बिनाइन ट्यूमर ऑफ मिक्स्ड ऑरिजिन से ओरिजिनेट करते हैं। फीमेल प्रेजेंट्स विद फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द लोअर पेल्विस एब्डोमेन एंड इज डायग्नोज विद ग्लैंडुलर ओवेरियन कार्सिनोमा। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे reveals the tumor tissue has the same microscopic morphology. How would this tumor be classified? इसको हम well differentiated कहेंगे। Patient presents with difficulty in phonation. Which brain area is most likely involved? तो phonation में उसको मसला है motor cortex involve होगा। The internal capsule is composed of which of the following? तो internal capsule में आपको क्या मिलेगा? That will be your white matter. Strep, a steep dose response curve indicate which of the following? steep dose response curve आपको narrow therapeutic index के बारे में बताता है। CCK जो है कौन से सेल से प्रोड्यूस होते हैं? आई सेल से। सेक्रेटिन S सेल, GIP के सेल्स। फिर इसके बाद है लीफ रूमानी सिंड्रोम इज रेयर हेरिडिटरी कैंसर प्रीडिस्पोजिशन सिंड्रोम प्राइमरीली कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन विच जीन? तो लीफ रूमानी में बोथ एलील्स इन वन एलील इन TP53, ठीक है, इसमें वन एलील ऑफ द TP53। मेटफॉर्मिन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा? डायरिया एंड गैस होगा। पोस्टीरियर वॉल गैस्ट्रिक अल्सर में हमने कहा था कि दैट इज योर ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। व्हाट इज़ द प्रेफर्ड मेथड फॉर परफॉर्मिंग लिवर बायोप्सी टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड सेफ्टी? तो एक्यूरेसी एंड सेफ्टी के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड करनी है। ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी परफॉर्म एट 9 इंटरकॉस्टल स्पेस, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली at risk of being injured? That is your ninth intercostal nerve. Patient presents with weakness in the right upper and lower limbs and deviation of the angle of a mouth to the left. The most likely site of the lesion क्या है? That is your cerebral, that is your medulla. Site of lesion क्या है? Medulla. Patient has analgesia, loss of temperature sensation on the right side of the face along with weakness on the left side of the body. The most likely lesion क्या है? तो इसमें मोस्ट लाइकली लीजन आप यहाँ पे पॉज करके यू कैन थिंक दिस इज लेटरल मेडुलर सिंड्रोम ऑफ द लेफ्ट साइड। पेशेंट विद नेजल पॉलिप प्रेजेंट्स विद फंगल इन्फेक्शन शोइंग ब्रॉड नॉन सेप्टेंट हाइफी ब्रांचिंग एट राइट एंगल्स। द मोस्ट लाइकली कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? तो नॉन सेप्टेट हाइफी में म्यूकोरमाइकोसिस। ज़ेल्वेगर सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एसोसिएटेड विद paroxysms ऑन a patient has LRTI for many days,
हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डैमेज, तो इसमें आपको कौन सा डैमेज मिलेगा, दैट विल बी योर cilia, ऑप्शन बी, that will be your cilia. If the left circumflex artery is blocked, which area of the heart is most likely affected, तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होंगे. एट्रियल फिब्रिलेशन रिलेटेड ईसीजी फाइंडिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको एब्सेंट पी वेव मिलेगा. इन पेशेंट विद स्टिएटो हेपेटाइटिस व्हाट विल बी सीन इन लिवर हिस्टोलॉजी, तो लिवर हिस्टोलॉजी पे आपको फैटी एसिड्स मिलेंगे. आफ्टर वुमेन अंडरवेंट लेप्रोटमी व्हाट विल यू टेल हर, आफ्टर हाउ मच टाइम will her scar gain near normal strength, so this is 3 months, option number C. Following is an example of specific immunity in the body, that is skin and mucous membrane. Natural killer cells cause which of the following, they destroy virus infected cells. Which of the following blood vessel is responsible for supplying anterior two-third of interventricular septum, तो anterior two-third of interventricular septum को लाडा सप्लाई करता है, लैड. विच डाइट शुड बी गिवन फॉर मैकार्डल, तो उसमें हमने लो कार्बोहाइड्रेट देना है, हाई प्रोटीन देना है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनोल क्या है, कि जिंतीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा. गार्लिक कंजम्पशन जो है फॉस्फोराइलेशन ऑफ HMG को ए रिडक्टेज करता है. एन एंजाइम इन्वॉल्व इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, अगर एक पेशेंट एक्सेसिव गार्लिक इनटेक करे तो इसमें HMG को ए रिडक्टेज की डिफिशियंसी आपको मिलेगी. नीडल इंसर्टेड अबव एम्प्टी ब्लैडर फॉर पेरिटोनियल फ्लूइड एस्पायरेशन, विच आर्टरी कैन बी डैमेज, तो इसमें कौन सा अबव एम्प्टी ब्लैडर होगा, तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक है ऑप्शन में, ऑप्शन ई. सर्फल ग्रैन्यूल्स में एक्टिनोमाइसीट्स होता है. फार्मल इज फाउंड अनकॉन्शियस विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पिन पॉइंट प्यूपल, एक्सेसिव सेलाइवेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो which of the following is most likely to improve the level of consciousness, तो एट्रोफिन देना है इसमें. organophosphorus poisoning है. 48-year-old male presents with complaint of severe headache and blurring of vision. Doctor performed the LP, he found that the CSF is blood stained, तो CSF blood stain आपको किस में मिलेगा, सब एरेक्नोइड हेमोरेज में मिलेगा. patient presents with ptosis midriasis horizontal diplopia, तो मैंने आपको कहा है कि जब भी आपको मेड्रिएसिस मिलेगा तो इसमें कौन सा नर्व होगा, दैट विल बी ओक्यूलोमोटर नर्व. सेवेयर हेमोरेज रिजल्टिंग इन मैप लेस देन 50, तो मैप जब भी लेस देन 50 होगा इसमें CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर म्यूटेशन ऑकर इन सिकल सेल डिजीज़, तो ये रिपीटेड है, एडेनिन टू थाइमीन, लास्ट पेपर में भी पढ़ा है. ड्यूरिंग इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग वेंटिलेशन, विच रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज अफेक्टेड, तो इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग वेंटिलेशन में आपको क्या मिलता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आपको मिलेगा. ठीक है, कौन सा रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज अफेक्टेड, दैट इज योर वेंट्रल, दैट इज योर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. थैलेमस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो थैलेमस इज डिराइव्ड फ्रॉम योर डायनसेफेलॉन. आफ्टर सल्फिंगोफेरेक्टमी फॉर रिकरेंट ट्यूमर विच मार्कर इज यूज्ड, सल्फिंगोफेरेक्टमी के बाद आपके साथ CA-125 इज़ यूज्ड. आफ्टर RTA पेशेंट सफरिंग फॉर बायोटेम्पोरल हेट्रोनोमस हेमिनोपिया, लीजन कहाँ पे होगा, मिडल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक कियाज्मा में लीजन होगा. पेशेंट प्रेजेंट्स टू OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक एंड हाई ब्लड प्रेशर. इन्वेस्टिगेशन रिवील सीरम सोडियम लेवल ऑफ 138, पोटेशियम ऑफ 3. मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ लो पोटेशियम क्या होगा, दैट विल बी योर अल्डोस्टेरोन. Patient went for tooth extraction. She was advised some antibiotic along with multivitamins and calcium supplements. She also was taking candesartan. तो candesartan किसकी इफ़ेक्टिवनेस, कौन से एंटीबायोटिक की इफ़ेक्टिवनेस को इफ़ेक्ट करेगा, दैट इज़ योर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन. ठीक है. 25-year-old male with swelling that is lateral and inferior to the pubic tubercle with positive cough impulse. लेटरल और इन्फीरियर टू प्यूबिक ट्यूबरकल में फीमोरल हर्निया लिखनी है. फिर है पोस्टमार्टम क्लॉट के साथ कौन सा रिजेंबल करता है, दैट इज चिकन फैट. पेशेंट इज एडमिटेड टू ICU एंड इंट्यूबेटेड आफ्टर स्टार्टिंग मल्टीपल एंटीबायोटिक. पेशेंट यूरिन कलर टर्न्स ग्रीन, तो सुडोमोनास है. इसमें आपने क्या करना है,
इसमें आईसीयू में इंट्यूबेटेड है, मल्टीपल एंटीबायोटिक, उसका यूरिन कलर ग्रीन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज़ पॉसिबली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज, तो रिफाम्पसिन की वजह से उसका यूरिन आपके साथ ग्रीन हो जाता है। इन ट्रीटमेंट ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमोरेज हम निमोडिपिन देते हैं। वेरी लॉन्ग चैन फैटी एसिड आर मेटाबोलाइज्ड बाय पेरोक्सिसोम्स। यंग और वुमेन प्रेजेंट्स विद हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, कोला कलर यूरिन। तो जब भी चिल्स कोला कलर यूरिन आपको मिले, दिस इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में हम डेंट्रोलिन देते हैं। ठीक है, ये सारे रट्टे हैं, आपने याद रखने हैं। पेशेंट हैड एन RTA विद रिजल्टेड इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एसिटेबुलम रिजल्टिंग इन पेन इन नी एंड हिप जॉइंट। विच नर्व इज़ लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सिम्टम्स, तो कौन से नर्व है, दैट इज़ योर शियाटिक नर्व। Look, I'm making all these efforts for you guys, so please before closing this video, इस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। ये सारी एफ़र्ट्स मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम आसान हो, और इन एफ़र्ट्स के बदले में एक सब्सक्रिप्शन तो मैं डिज़र्व करता हूँ। A patient sustained a gunshot piercing injury from the sternal angle at second intercostal space, exiting at the T4 level in the back. Which structure is most likely spared, तो कौन सा structure spare होगा, that will be your option number D, archofaota। Characteristic of cerebellar region का सबसे important characteristic क्या है, that is dysdiadokinesia। Baby born having cleft palate, ear and facial abnormality, mother taking drugs for treatment of cystic acne। तो एक्नी में आपने रेटिनोइक एसिड रेटिनोल एसिड देना है या रेटिनोइक एसिड। अ पेशेंट पेनेट्रेटिंग इंजरी इन एक्जिला रिजल्टिंग इन वीक फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एंड लॉस ऑफ सुपिनेशन। मोस्ट लाइकली डैमेज इसमें क्या होगा, पेनेट्रेटिंग इंजरी टू द एक्जिला में फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो एंड लॉस ऑफ सुपिनेशन इज़ ऑल्सो लॉस्ट। तो ये आपके साथ कौन सा नर्व होगा, एक्सिलरी नर्व होगा कि मस्कुलोक्यूटेनियस होगा। दिस विल बी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ऑप्शन नंबर ए मस्कुलोक्यूटेनियस। फिर इसके बाद है पेशेंट इज़ फाउंड टू हैव कंजेनिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एओर्टा। विच स्ट्रक्चर कंपोनेंट इज़ मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट, तो इसमें कौन सा होगा, दैट विल बी इलास्टिन। विच हार्मोन प्राइमरी कंट्रोल सोडियम कंसनट्रेशन इन द बॉडी, तो अल्डोस्टेरोन है उसके लिए। Patient presents with fever, chest pain radiating to the back, not related to respiration. On examination, muffled heart sound है along the left sternal border। तो where does the infection lie, तो ये infection आपके साथ होगा in the pericardium, cardiac tamponade है। A hypertensive patient is undergoing laparoscopic cholecystectomy। A test dose of antibiotic is administered and the air inflated into the abdomen. Subsequently, the patient experiences a sudden drop in the blood pressure and rise in the pulse rate. What is the most likely cause, तो इसका most likely cause क्या है, amongst the following this is anaphylactic reaction। फिर उसके बाद है ट्यूमर causing obstruction of the mitral valve। तो mitral valve की obstruction मैक्सोमा की वजह से होता है। 59-year-old female has amenorrhea for 1 year, what will be the hormonal profile। तो पोस्ट मीनोपॉजल आपके साथ FSH और LH इंक्रीज हो जाते हैं और एस्ट्रोजन कम होता है। एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन कार्डिक पेशेंट क्या होगा, दैट विल बी एथियोमेडेट। प्रेग्नेंट फीमेल एट 10 weeks, HB12 आफ्टर फ्यू मंथ्स, HB ड्रॉप्स टू 10, व्हाट इज़ द कॉज, तो इसका कॉज है योर फिजियोलॉजिकल चेंज। CT स्कैन ऑफ द फीटस शो सिंगल लार्ज सेरेब्रल वेंट्रिकल एंड फ्यूज थैलेमाई। तो ये फ्यूज थैलेमाई की बात जब भी आए आपने इसमें टेलेंसेफेलॉन या प्रोजेंसेफेलॉन की बात करनी है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स व्हेन फैटी फूड इंटर्स द ड्यूडेनम। जब फैटी फूड इंटर द ड्यूडेनम को इंटर करता है तो इसकी वजह से ऑप्शन ए CCK विल बी रिलीज्ड, CCK विल बी रिलीज्ड। कंपोनेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक में स्मूथ मसल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और लिपिड्स आपको नज़र आएंगे। फिर इसके बाद है मसल रिलैक्सेंट विच कंटेन स्टीरॉयड स्ट्रक्चर। तो स्टीरॉयड स्ट्रक्चर किस में होगा, इन रोक्यूरोनियम। फिर उसके बाद है ये सारे स्टीरॉयड स्ट्रक्चर्स हैं
non-depolarizing muscle relaxant, having steroid structure, rocuronium, pancuronium, pipercuronium, pipecuronium, vicuronium. ओवरी सरफेस एपिथेलियम क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फ्यूक्रोमोसाइटोमा क्या है? VMA इन यूरिन, ऑप्शन नंबर सी। फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो CCl4 पॉइजनिंग की वजह से। Difference between malignant and normal cells such that malignant cell repairs the shortening of chromosomes that they can so that they can continue dividing. तो इसके लिए कौन सा enzyme responsible है? That is your telomerase. Pulse oximeter will show enormous reading किस में? In methemoglobinemia. Which of the following decrease in pregnancy? तो pregnancy में आपके साथ क्या decrease होता है? ऑप्शन नंबर A एंटीथ्रोम्बिन 3, और ये चीज़ें आपके साथ इंक्रीज़ होती है। यू कैन रीड दिस। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट? तो दैट इज़ फेमिलियल एडोनोमेटस पोलिपोसिस। पेशेंट हैज़ डिलेड रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओपियोइड, एक्ट ऑन विच रिसेप्टर? तो ओपियोइड स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, और ट्रामाडोल जो है वीक म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करता है। Patient presents with severe asthma, FEV1 less than 50. He is cynosed. Treatment given B2 agonist but not working. What is the next treatment? तो next treatment में आपने क्या देना है? उसको आपने इप्राट्रोपियम ब्रोंकोडाइलेटर है, इप्राट्रोपियम ये देना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कैलकुलेट द टोटल बॉडी वाटर? टोटल बॉडी वाटर को कैलकुलेट करने के लिए हम आइनोलिन यूज़ करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी क्या था? अच्छा, टोटल बॉडी वाटर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर ट्राइट्रियम। टोटल बॉडी वाटर के लिए टाइट्रियम भी यूज़ होता है, ड्यूट्रियम भी यूज़ होता है, एंटीपायरीन भी यूज़ होता है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? हाइपरकेलीमिया होगी। ठीक है, हाइपरकेलीमिया इज़ द साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, तो दिस वाज आई थिंक द लास्ट MCQ। अच्छा, तो आपने इसके बारे में याद रखना है कि जब भी एक पेशेंट को मैसिव ट्रांसफ्यूजन होगा तो उसमें हाइपरकेलीमिया होगी। अगर उसको मल्टीपल या कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन हुए हैं तो उसमें देयर इज़ रिस्क ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस, एंड इफ़ देयर इज़ रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन सो ही इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोकैल्सीमिया। So this was enough for anesthesia paper. Hope you have learned a few things from this video, and thanks for watching. Inshallah, see you in the next video. Please don't forget to subscribe.